Hello students, welcome back to Abhigyan Academy. In today's class, we will be discussing about a very important topic in genetics, biology. ठीक है? Very conceptual, and this topic is basically like an exception to some basic principles of genetics. In today's class, we will be discussing about the phenomena of incomplete dominance and codominance. So let us now try and understand what these two mean. First, let us understand incomplete dominance. Now, we all know that whenever there are two alleles, there is a recessive allele and a dominant allele. So whenever a dominant and dominant allele come together, the dominant trait shows up. Whenever a recessive and recessive trait come together, the recessive trait shows up. But whenever the condition is heterozygous, that is, there is one dominant allele and one recessive allele. In that case, the dominant allele basically overshadows the recessive allele and expresses itself over the recessive trait. राइट मतलब वो रिसेसिव वाले को चुप करा के उसकी जगह वो एक्सप्रेस होता है ठीक है तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फिनोमेना इन अ फ्लावर कॉल्ड स्नैपड्रैगन ठीक है स्नैपड्रैगन में होता क्या है ठीक है see if you try to understand here if you try to understand here in snapdragon the for the trait of color for the trait of color the dominant gene is the red color right the dominant gene is the red color it is the red color so we write it as capital R and the recessive gene is the white color so we write that as small r ठीक है now if we do a cross of a homozygous red and a homozygous white in case of snapdragon. So what do we get? If I draw a Punnett square right here, okay, if I draw a Punnett square right here, so we get, this is what we get, right? This is what we will get. Now, if I go by the normal principles of genetics, if I go by the normal principle of genetics, this particular thing, the color of this particular thing should be red. Why red? Because there is the one recessive and one dominant allele together. So the dominant should overpower the recessive gene and express itself as the red. Okay? But this is not what actually happens. Now, what exactly happens in case of Snapdragon is that the red color is unable to completely dominate the white color. ठीक है मतलब रेड कलर पूरा पूरी तभी एक्सप्रेस हो सकता है जब वो व्हाइट कलर को पूरा पूरा शांत करवा पाए बट होता क्या है स्नैपड्रैगन में ये रेड कलर का जो एलील है ये व्हाइट कलर के एलील को पूरा पूरा शांत नहीं करवा पाता है तो व्हाइट कलर भी थोड़ा सा होने से भी हो जाता तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस सिंस रेड कलर व्हाइट कलर को पूरा पूरा ओवरशैडो नहीं कर पा रहा है वो डोमिनेंस उसका इनकम्प्लीट रह जाता है एंड इनकम्प्लीट रहने की वजह से जो एलील ऑफस्प्रिंग में दिखेगा वो रेड नहीं होगा क्योंकि रेड डोमिनेट पूरा पूरा डोमिनेट नहीं कर पाया और व्हाइट भी नहीं होगा ठीक है इट विल बिकम अ मिक्स ऑफ बोथ तो रेड और व्हाइट का मिक्स होके ऑफस्प्रिंग पिंक कलर का निकलता है क्यों क्योंकि देखो प्रिंसिपल्स के हिसाब से या लॉज ऑफ जेनेटिक्स के हिसाब से ये होना तो रेडी चाहिए बट सिंस रेड कलर व्हाइट कलर को पूरा पूरा डोमिनेट नहीं कर पा रहा है since the domination is incomplete because of that the color of the flower is becomes pink which is an intermediate of both red and white ठीक है this was incomplete dominance now let us have a look at codominance all right where do we see codominance see incomplete dominance क्या था incomplete dominance was that कि one allele is unable to completely dominate the other allele ठीक है बिकॉज ऑफ विच द रिजल्ट इज एन इंटरमीडिएट ऑफ बोथ ठीक है बट ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस होते हैं नो अलग अलग बट कोडोमिनेंस में क्या होता है कि जो दोनों एलील होते हैं दोनों एलील ही डोमिनेंट होते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता कि दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करें या इंटरमीडिएट बन जाए होता क्या है दोनों इंडिविजुअली अलग अलग से एक्सप्रेस कर देते हैं मतलब
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा था कि एक एलील दूसरे एलील को ओवरशैडो कर रहा था. सिंस वन एलील was overshadowing the other allele, because of that because of that excuse me, since one allele was overshadowing the other allele, because of that क्या हो रहा था, और पूरा पूरी ओवरशैडो नहीं कर पा रहा था सबको, तो ना ही रेड हो रहा था ना ही व्हाइट हो रहा था, मिक्स होके आ रहा था. तो कोडोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों एलील ही डोमिनेंट होते हैं, कोई रिसेसिव नहीं होता. इनकम्प्लीट में तो एक रिसेसिव था, यहाँ दोनों ही डोमिनेंट होते हैं और दोनों इक्वली पावरफुल होते हैं. तो होता क्या है, दोनों ही साइमल्टेनियसली एक दूसरे को एक्सप्रेस कर देते हैं. सो वेयर डू वी सी कोडोमिनेंस? वी नोटिस कोडोमिनेंस इन ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग. हमारे ब्लड होता क्या है, जो ए ब्लड ग्रुप का जो एलील है उसको कहा जाता है आई ए. ठीक है. बी ब्लड ग्रुप के एलील को कहा जाता है आई बी. ठीक है. और ओ ब्लड ग्रुप के एलील को लिखा जाता है स्मॉल आई. ठीक है. ना आई ए और आई बी दोनों ही इक्वली डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट है. और ये जो स्मॉल आई है ओ का, ये रिसेसिव. ठीक है. अभी समझने का ट्राई करें. अगर आई ए और स्मॉल आई साथ में आ गए, इन दैट केस क्या होगा, एक रिसेसिव आ गया और एक डोमिनेंट आ गया. आई ए स्मॉल आई को पूरा पूरा चुप करा देगा, डोमिनेट कर जाएगा, एंड द ब्लड ग्रुप दैट वी विल हैव इज ए ब्लड ग्रुप. ठीक है. सिमिलरली अगर आई बी और स्मॉल आई आ गया, देन आई बी स्मॉल आई को डोमिनेट कर जाएगा, एंड द ब्लड ग्रुप विल बी बी ब्लड. अगर दोनों स्मॉल आई हो गए, इस केस में क्या हुआ, दोनों ही रिसेसिव है, तो रिसेसिव वाला जीन निकल के आएगा बॉडी में. इन दिस केस द ब्लड ग्रुप विल बी ओ. ठीक है. अगर दोनों ही आई ए, दोनों एलएलसी आई ए है, तो ए ही होगा, दोनों ही डोमिनेंट है. दोनों आई बी है, तो द ब्लड ग्रुप विल बी बी. ठीक है, बिकॉज दोनों ही डोमिनेंट है. बट द फाइनल स्टेप, द फाइनल थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि अगर एक एलील बाई चांस आई ए हुआ, दूसरा आई बी हुआ, इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही डोमिनेंट है, कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर पाएगा, दोनों ही इक्वली पावरफुल है, कोई किसी को चुप नहीं करा पाएगा. तो होगा क्या, बोथ ऑफ देम विल एक्सप्रेस देमसेल्फ. तब ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप में दोनों चीजें दिखने लगेगी तब. इसीलिए द ब्लड ग्रुप विल बी ए बी. ब्लड ग्रुप विल बी ए बी. सो दिस इज हाउ ब्लड ग्रुपिंग इज डन इन ह्यूमंस. इसके अलावा हमारे बॉडी में एक रीसस फैक्टर होता है और द आर एच फैक्टर. ठीक है. जिनके बॉडी बॉडी के ब्लड में आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उनके ब्लड ग्रुप को हम पॉजिटिव बोलते हैं. जिनके ब्लड ग्रुप में आर एच फैक्टर नहीं होता, उनके ब्लड ग्रुप को हम नेगेटिव बोलते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल माई ब्लड ग्रुप इज ओ पॉजिटिव. आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. इसका मतलब क्या है, मेरे जीन्स क्या है, माई एलील्स आर स्मॉल आई एंड स्मॉल आई, दोनों रिसेसिव है, इसीलिए वो ओ बना. एंड आई हैव द रिसेस फैक्टर इन माई बॉडी, दैट इज वाई द सी साइन इज पॉजिटिव. ठीक है, ओ पॉजिटिव. सो that was it from today's session. I hope it was a helpful session and you understood the concept of these topics, because these two topics are very conceptual, although they are very interesting and easy to understand, but it's very conceptual, so it's very important that you understand the basic nuances of how to go about it. Okay. I hope it was a helpful video session for all of you. I'll see you guys soon again in another video. Until then, study well, take care, goodbye, and Jai Hind.